So, greeting to all participants from EMSME and M1 Action side, and very warm welcome to each one of you. हम सबको पता है the cash flow is the biggest crunch the MSME space face, and if as per one survey, the 80% businesses which shut down their businesses within the 4 years, and one of the main reason is the cash flow mismanagement or the lack of cash flow at many point of time when it is required the most. So today we are going to discuss everything around this cash flow management and the best, cheapest, and yet fastest way of financing through trades platform. I'm personally very much fond of trades platform because it is changing the MSME ecosystem completely in India, and it is empowering MSME towards the Viksit Bharat. So the more towards M1 Exchange trades platform will be shared by our great speaker who is very dynamic personality, and he has completely hold on this topic. He is also from belong from the CA fraternity. So thank you to host our co-CA. He's also IIM Calcutta alumni. He is ex co-founder of MSME X and has a vast experience over this topic. I would like you all to participate, post your questions, whether silly or significant, just don't bother. Just keep putting your questions on the chat box. In between, wherever we'll get the appropriate time, we'll take all these questions. And I would like to personally thank the Gen all over India Chart Accountant Federation who have taken part in this webinar and doing the campaign, reaching out to the people, and along with that, very much big gratitude to the Indian Chamber of Commerce and the Connect Easy. So again, very warm welcome to all of you. Today, I am C. Ankush Jain hosting this event. Very blessed to host such a guest, Mr. Vishal Kumar. So Vishal sir, over to you. I won't take much of your time. I'll interrupt you if required in between if those questions comes from the participant to keep it interactive enough. Over to you, Vishal. Sure, Ankush. First of all, नमस्कार. Thank you so much. आप Okay. सभी लोगों का अभिनंदन, आभार इस वेबिनार में आने के लिए। पहले तो सैटरडे है, ऊपर से शाम होने का समय है। All of you must be either closing your office, going to meet your family members, or you are somewhere gonna be busy enjoying the evening today. But let's make this evening more productive with what we are gonna discuss, being one of the innovative ways of financing your business. I'll talk more in detail, and thank you so much, Ankush, for setting this up. I wish eMSME great success. eMSME is a platform which is providing right and very directional knowledge to all the MSMEs as far as what all government is providing MSMEs in terms of financing support, in terms of growth support or business support. So please go visit, take the services of eMSME and take the advantage of the knowledge repository eMSME has. Ankush and his very dynamic team is building this platform. So many wishes to you, Ankush. And I Shukriya, also Shukriya wish Vishal sir for your kind words. अब मुझे लगता है कि इंग्लिश हिंदी में बात करेंगे. हिंदी मेक्स इट वेरी स्टिकी एंड गुड. इंग्लिश इन इटसेल्फ हैज इट्स ओन चार्म. सो हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे. आई कैन सी सो मेनी पीपल ज्वाइनिंग. जो भी कुछ लेट कमर्स ज्वाइन किए हैं, कोई बात नहीं, आइए आके अगला 1 घंटा बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं. मैं दोबारा से आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं. अबाउट मी, आई एम विशाल कुमार. आई एम right now managing SME business at M1 Exchange. M1 Exchange एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 8 सालों से MSMEs को पूरे हिंदुस्तान में सही समय पर, सही कॉस्ट पर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवा रहा है. And we are blessed to get a lot of blessings and lot of business opportunities coming through various banks to all the MSMEs.
So let's understand what this supply chain financing is. आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद हम डेली बेसिस पे नहीं करते हैं. So let's bring this webinar to such a knowledge level that all of you, when you go back, you really talk about what either you have been missing or what you can do better in business. So with this, अंकुश, 1-2 मिनट का और वेट कर लिया जाए या फिर अपनी ये ज्ञान की यात्रा शुरू करें? Sir, I think 200 plus entrepreneur already joined, so let's not make them wait. We will repeat later or summarize later. ठीक है. तो उन सभी एंटरप्रेन्योर्स का जिन्होंने यहाँ पर आकर अपना समय दिया है, दोबारा से अभिनंदन. अब हम शुरू करते हैं सप्लाई चेन फाइनेंसिंग की इस सब्जेक्ट को समझने की जर्नी को. सो सबसे पहले समझते हैं कि हम एमएसएमईज की बात करते हैं, हम एमएसएमईज एंटरप्रेन्योर्स के जुनून की बात करते हैं, और उस जुनून में सबसे इंपॉर्टेंट है वो किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. टुडे इंडिया इज अ $4 trillion इकोनॉमी and we are poised to become a $7 trillion economy in the next 5 years. And this is only and only possible with the great amount of contribution MSME sector is doing. All of us are aware 1/3 of the GDP is contributed by MSME sector. Almost 60% of the workforce of India is employed by MSME sector. And how can we not quote this, that 45% of Indian exports, and through exports we earn foreign exchange. Through exports we also make our product reachable to consumers globally. So 45% of the entire export is also taken care by MSME sector. So huge round of applause to all the entrepreneurs sitting here and to the MSME sector. Please go to there is a you can see that there is a react button, or you can go and just clap for all the MSME sector, or you can go in the chat box and write about them. Congratulations, bravo, great job, kudos and what all not. Go और बधाइयां दीजिए, आप अपने आप को बधाइयां देंगे. So अब इसके बाद इंडियन इकोनॉमी सर. So, अब शुरू करते हैं. अब हमने एमएसएमई की बात कर ली. अब समझते हैं कि एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है. मैं कुछ नंबर्स आपके सामने प्रोजेक्ट करना चाहूंगा. ये नंबर्स छोटे नंबर्स नहीं हैं. ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो शायद सरकार को, हमको और बहुत सारे बुद्धिजीवियों को सोचने में मजबूर करेंगे. तकरीबन $800 billion वर्थ ऑफ मनी डिमांड एग्जिस्ट करेंटली for fulfilling the dreams and growth desires of MSME sector. And all of us know, including the government, that only 400 billion worth of this money demand can be fulfilled through debt. Debt meaning loan के through, borrowing के through उस demand को fulfill किया जा सकता है. Now, it is also a fact that आप सबको पता है, it's also a fact that collaterals are limited, they are finite. That's the reason government has, and all the big research industries have also realized that out of this 400 billion, only 240 billion can be fulfilled through conventional financing. मैं उन सब की बातें करूंगा अगले कुछ slides में. Now, which means 40% of this 400 million, which is 160, जो छोटा सा गोला आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पर, can be fulfilled through supply chain financing. अब ये supply chain financing क्या होता है, इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे. Which means a big amount of 160 billion can only be fulfilled through supply chain financing. So this supply chain financing cannot be ignored. ये चीज तो क्लियर है. आई होप यू विल एग्री. गो इन द चैट बॉक्स एंड गिव अ थम्स अप कि यस, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग को समझना जरूरी है. यू कांट जस्ट इग्नोर इट बिकॉज इट्स अ बिग मनी
and it just imagine 40% of your money requirement in future are going to get fulfilled through supply chain financing. So let's learn it today. So when we talk about supply chain financing, पहले ये समझ लेते हैं what supply chain financing is not, because there is huge confusion about what supply chain financing is, what supply chain financing is not. हम बहुत ही अलग अलग तरीके से कभी कुछ किसी चीज को कुछ बोल देते हैं. दैट्स द चैलेंज. सो मैंने सोचा सबसे पहले क्या सप्लाई चेन फाइनेंसिंग नहीं है उस पर बात कर लेते हैं. इसके साथ ही अब समझने की जरूरत है कि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग लोन नहीं है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है. आप लोग बिजनेस लोन करके एक टर्म्स होते हैं जिनको आगे पीछे एसएमई लोन, बिजनेस लोन, लार्ज लोन, स्मॉल लोन, वो सब नहीं है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग. हम प्रॉपर्टी रख कर लोन लेते हैं, वी कॉल इट लैप फैसिलिटी. इट इज ऑल्सो नॉट दैट. फॉर श्योर you may take personal loan and use that money in your business. That is also not supply chain financing. Unfortunately, there are days when we also do this, that we put our hard earned properties and everything collateral with the bank, take loan and use it for business. वो भी supply chain financing नहीं है. So हमको ये मेरी एक मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सबको ये बोलूं कि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग क्या नहीं है. अब जब हमको पता चल गया है कि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग नहीं है, तो इसमें और समझते हैं क्या है. सप्लाई चेन फाइनेंसिंग से एक चीज तो समझ में आ गई कि यहां पर सप्लाई चेन की बात हो रही है. सप्लाई चेन का सिंपल मतलब है किसी भी सप्लाई में वैल्यू ऐड करना. वैल्यू ऐड करने का मतलब है किसी ट्रांजैक्शन का होना. ठीक है. अब कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस सिनेरियो में कैसे होता है उसको देखते हैं. ट्रेड कैसे होता है, उसमें दो पार्टी होती है, सेलर एंड अ बायर. सो इन दिस केस यू ऑल नो दैट बायर ऑलवेज आइडेंटिफाई अ सेलर based on quality, based on rate, based on location, based on relationships, जहां से उसको गुड्स और सर्विस खरीदते हैं. After that, the seller and buyer both agree on payment terms. Then seller does a supply, assuming वो payment terms 45 days के हैं. Basis this, buyer issues a PO and seller supplies goods. मान के चलते हैं द डे द एग्रीमेंट हैपेंड एंड व्हेन द सप्लाई हैपेंड 30 दिन निकल गए. मैंने यहां पे कहीं लिखा है D30. ओके. एट लीस्ट टिल दिस स्टेज buyer and supplier agreed to come together to enter into a trade. Seller has already supplied goods, which means now buyer is obligated to pay back the seller, which also happens because in this case due date is after 45 days, which means the buyer is making the payment against this trade on 75th day from the day the buyer was identified. The seller was identified. Agreed. अब आप सोच के चलिए कि ट्रेड में दो चीजें हो रही है. ट्रेड में रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, गुड्स की मूवमेंट हो रही है एंड मनी मूवमेंट हो रही है. तो ऐसा क्यों है कि सब कुछ जब सेलर बायर के रिलेशन बिल्ड होते हैं तो अच्छा लगता है, मनी के आते आते थोड़ी सी घबराहट होने लगती है. अनफॉर्चुनेटली वो घबराहट इसलिए होती है क्योंकि अगर इस सेलर को पैसे की जरूरत जल्दी पड़ गई, अज्यूम करते हैं कि ये ट्रेड हुआ, माल पहुंच चुका है, बट सेलर इज इन नीड ऑफ मनी एंड टू गेट दैट नीड उसको कुछ तो करना पड़ेगा. यू अग्री? व्हाई डोंट यू गो एंड गिव अ थम्स अप? आई एम श्योर आप इस चीजों से तारुफ रख पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे इस सिचुएशन से. क्या करता है सेलर? वो बायर के पास जाता है एंड आस्क द बायर, कैन यू पे मी अर्ली, प्लीज प्लीज पे मी अर्ली, आई विल गिव यू सम डिस्काउंट. Agreed? That's one. The second is the seller is running to its bank and saying, give me more money or open a CCOD account. Third is, for sure,
If the bank is saying no, your collaterals are limited because it's a secured financing, we can't give you more money, then they say, okay, give me unsecured loan. And all of you are aware that unsecured loan comes at a high cost. And in case the bank is also not ready to give unsecured loan, what we all eventually do, we go to the unorganized market asking for money. एंड आप में से सब लोग, ऑल माय डियर गुप्ता जी, मिश्रा जी, शर्मा जी एंड चौधरी साहब, आप सब लोग साहूकार साहब के पास जाते हैं या मंडी के उन बड़े लाला जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि 1.5% पर 2% पर मुझको पैसे दे दीजिए. सो गुप्ता जी एंड जैन साहब, प्लीज नाराज मत होइएगा, बट दैट्स हाउ द बिजनेस इज इन इंडिया. और इसमें कुछ गलत नहीं है. तो मुझे आप प्लीज चैट बॉक्स में जाके बताइए, क्या आप इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं? दैट देयर इज अ ट्रेड हैपनिंग, मनी इज आइदर कमिंग लेट और यू नीड मनी फास्टर. तो आप इन चारों चीजों में से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं. सो अंकुश जी, क्या आपके पास ऐसे कितने सारे लोग आते हैं जो आकर ये सेम सिचुएशन से रिलेट कर पाते हैं? Thank you, Sarji, for asking that question. And around 100 more participant has been joined. So I would again like to, greet them. We are doing this webinar, the knowledge sharing, in association with Connect Easy, Indian Chamber of Commerce, and JCEF का दिगंबर जैन संघ. आप सबको ग्रेटिट्यूड है, आपने ज्वाइन किया, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद. और विशाल सर जो M1 एक्सचेंज में लीड कर रहे हैं एसएमई, वो बहुत ब्यूटीफुल ढंग से, रिलेटेबल ढंग से हमें बता रहे हैं कि कितने सारे व्यापारियों को इसी समस्या से उलझना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस. कैश फ्लो इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम हाउ वी कैन सॉल्व इट इन अ चीपेस्ट, फास्टेस्ट, क्विकेस्ट मैनर, इन अ सिंपलर टर्म. So, Vishal sir, I can very well relate because 800 people coming on our website on a daily basis, and most of the people ask that how to solve this concern, and you are solving it beautifully, sir. So, over to you. Sure, अंकुश जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और आप सभी लोग जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, बहुत ज्यादा मिस आपने नहीं किया है. प्लीज ज्वाइन, स्टे टुगेदर. मैं तो कहूंगा अपने दोस्तों को वो जो वेबिनार का लिंक है ना, प्लीज अपने दोस्त, चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, और वो जो पड़ोसी लड़का है ना जो आपको काफी परेशान करता है, उसको भी भेज दीजिए, so that they can go and understand what this supply chain financing is all about. So now what we have spoken so far, हमने बात किया इंडिया में एमएसएमई सेक्टर को कितने पैसे की जरूरत है. We also understood इस पैसे की जरूरत को सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के थ्रू अरेंज किया जा सकता है. What is supply chain financing not, हमने उसकी भी बात की. फिर हमने ये जानने की भी कोशिश की कि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में अगर सप्लाई चेन है तो उसका मतलब क्या है. विच मीन्स कोई भी एक ट्रांजैक्शन जिसमें एक वैल्यू क्रिएट होती है उसको सप्लाई चेन बोला जाता है. अब वो ट्रांजैक्शन क्या है? वो एक ट्रेड है बायर सेलर के बीच में, और अगर उस बायर सेलर की ट्रेड के बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्यमी इन 4 तरीकों से जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ट्राई करता है पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. अब रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हो, जरूरी नहीं है 4 तरीकों से. तो समझते हैं कि आगे क्या होता है जब व्यापार में पैसे की जरूरत है. अब जब व्यापार में पैसे की जरूरत है, और आप सभी एंटरप्रेन्योर प्लीज अगले 2 मिनट थोड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बिजनेस का बहुत बड़ा डायलेमा है किसी भी व्यापारी, उद्यमी के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, or any of the founders, owners, all those people who are aspirational to make their business big. That is one of the biggest question. कितनी उधारी देनी है, कितने समय के लिए उधारी देनी है. That's exactly what is written on the screen. How much to give on credit and for how long give this credit. And this dilemma is how you keep balancing. ये एक तराजू है जिसको आप बैलेंस करने में लगे रहते हैं. वो तराजू के 2 पहलू क्या हैं? एक पहलू ये है कि कैसे मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करूं. हाउ डू आई इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी इन बिजनेस. एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर, जितना माल बेचेंगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. एग्जैक्टली. या फिर जितना माल को बार बार साइकिल करेंगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. ऑल्टरनेटिवली इन द अदर साइड इज
लिक्विडिटी, जितना माल आप बेचते हैं क्रेडिट पर उतनी लिक्विडिटी कम होती है. सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू बैलेंस लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. एंड इनवेरिएबली most of the business fail in balancing this, and all those people who are able to balance this better are relaxing. How do they relax? They relax by creating the right credit policy. और ये वही क्रेडिट पॉलिसी है जो इन्फ्लुएंस होती है कंपटीशन से, फाइनेंसिंग कॉस्ट के बेसिस पे, एंड व्हाट इज द ग्रोथ एंड रिस्क ओवरऑल बैलेंसिंग दैट दे आर सपोज टू डू. सो इस बिजनेस डायलेमा के साथ और वो जो ट्रेड में आने वाले कैश क्रंच के साथ अब हम समझते हैं कि हमारा एमएसएमई आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको वो फेस कर रहा है, दैट इज नन अदर देन मनी स्टक विद कस्टमर्स. एंड इट्स अ वेल नोन फैक्ट, कुछ नई तरोताजा खबर नहीं है. इट्स अ वेल नोन decade old, age old problem that MSMEs are facing the biggest challenge in the form of delayed payment. वो प्रॉब्लम खाली मार्केट की नहीं है, एम्प्लॉइज की नहीं है, ऑर्डर्स की नहीं है, क्वालिटी की नहीं है, लैंड की नहीं है. ये प्रॉब्लम है उन लोगों की जिन कस्टमर्स को आपने 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन पर पेमेंट दिया है और वो दिन ही नहीं आ रहा है जब पैसा वापस आ जाए. So let's see how we can solve this problem. So let's understand what supply chain financing means. अभी तक हमने समझा supply chain financing क्या नहीं है, अब समझते हैं supply chain financing में है क्या क्या. और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, this is one sub subject which is evolving, which is also including a lot of other financing aspects. But as of now in India, when we talk of supply chain financing, it is one side is purchase side, other side is sales side. So any financing happening on managing, giving finance on either on the purchase side or on the sales side is predominantly falling under supply chain financing. And in this supply chain financing, currently in India, trade receivables e-discounting system, TREDS, is helping MSMEs big time. We will talk about what TREDS is and how it is shaping new India. In addition, we also know bill discounting, early payment, factoring, non-factoring. अच्छा, मैं आप सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा. आप चैट बॉक्स पे जाइए, इन सारे शब्दों में से all that is written, let me know what all you are aware of. If you know bill discounting, just write bill discounting and enter. If you know factoring, just write factoring and let me see your response. अगर आपने कभी वेंडर फाइनेंसिंग किया है या आपके कस्टमर ने आपको कभी अर्ली पेमेंट फैसिलिटी दिया है, just go there. Or if you know TREDS, go and write TREDS in the chat box. Let's take some seconds and understand that bit. I can see all of you writing. This is so encouraging. Let me know. That's it. That's really wonderful, sir. Because सारे व्यापारियों को ये भी जानना है कि उनकी यदि फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए पेमेंट आने की तो उनके बिजनेस को कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है. Exactly. In terms of turnover, in terms of profit. So right, Ankush. And many of us do not really know all these terms also. Very true, very true. So अब क्योंकि हमने सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है ये समझ लिया है, सम ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट एज यू आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स. देखिए, ये थोड़ा चैट के साथ ना एंटर करते रहिए, मजा आएगा. जस्ट इमेजिन इट्स योर व्हाट्सएप चैट, तो आप लिखते रहिए सो दैट यही एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं आप के साथ बात कर पा रहा हूं. सो लेट्स एंजॉय दिस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. Let's make it more two-way. So thank you so much, all the people who are participating here, encourageously writing. Thank you so much. It gives me a lot of boost. So अब हमने समझा कि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग क्या है, तो अब ये समझना जरूरी है कि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के फीचर्स क्या हैं. क्यों ऐसा है कि आप और हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग नॉन कोलेट्रल होती है जनरली.
ये अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग होती है किसी भी बिजनेस के लिए, और आप सभी उद्यमी एंड व्यापारी लोग ये समझ पाएंगे कि अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग का क्या मतलब है। दूसरी चीज, ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग ऑफ एनी टाइप इज ऑलवेज गिवन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है यहाँ पे 4 साल की सप्लाई चेन फाइनेंसिंग होती है, ऐसा नहीं होता। आपका जो भी ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट है उसका एक शॉर्ट पीरियड के लिए फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड के लिए उसकी कॉस्ट भी कम होती है। इंडिया में आज की डेट में जितनी भी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पर दी जाती हैं। व्हाई दे आर कॉम्पिटिटिव? बिकॉज देयर इज अ मार्केट प्लेस इफेक्ट, देयर आर मेनी प्लेयर्स वर्किंग, there is enough stiff competition in between these players, and as a result they are ready to provide financing at a cheaper rate. साथ ही साथ मोस्ट ऑफ दी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास डिजिटल तरीके से आ रही हैं। लॉट ऑफ फिनटेक कंपनीज आर इवॉल्विंग एंड ब्रिंगिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू इन अ डिजिटल वे। अब क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है, इन मोस्ट ऑफ द सप्लाई चेन फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स आर ऑफ बैलेंस शीट। ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता है कि जो भी कुछ इस फाइनेंसिंग को एंजॉय कर रहा है उसकी बैलेंस शीट पे एक negative impact nahi aata and it doesn't become direct borrowing in your books. So with these kind of very interesting and unique features, let's understand कि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग की अब हम आजकल इतनी बातें कर क्यों रहे हैं। क्यों ऐसा है कि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग एमएसएमईज के लिए आज बहुत जरूरी हो गई है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि आज ही क्यों हम सप्लाई चेन फाइनेंसिंग की बात करें। क्योंकि एमएसएमई सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में 1/3 कंट्रीब्यूटर है। इफ इंडिया इज गोइंग टू अचीव अ $7 trillion इकोनॉमी स्टेटस, विच मींस इसमें से 2.5 ट्रिलियन डॉलर विल कम फ्रॉम एमएसएमई सेक्टर। This is only possible when the right financing happens, and there is finite money available for non-supply chain financing opportunities. That's why we are talking about this opportunity. All of you are aware that government has done a lot of changes recently as far as MSME sector is concerned. चाहे वो MSME की definition को बढ़ा देना हो, या फिर in case people who are not making the payment to MSMEs, there is a income tax disallowance under section 43BH. All of you are aware, I am sure. या तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने या वकील साहब ने इस चीज को आपको पक्का बता दिया होगा that there is a disallowance if the MSMEs are not paid within 45 days. That's why that is also an enablement. साथ ही साथ there is a compulsory trades registration for every entity in India which has a annual turnover of 250 crore. So this is also a interesting step. ये तो थी गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या हुआ। अब आप एक और चीज समझिए। टुडे द डिजिटल अडॉप्शन बाय बिजनेसेस, बाय गवर्नमेंट, बाय रेगुलेटर्स and by consumers is at its peak. So because digital adoption बहुत अच्छा है, that's the reason it's a perfect opportunity to avail this. Currently, all the tech solutions and this advancement of AI, artificial intelligence, is bringing such a enablement to the bankers and businesses that the right business profiling is happening and a very efficient ecosystem is getting created where risks are identified right. And also the blockchain technology is bringing a lot of data consistency and uniqueness. So in my view, ये बहुत अच्छा समय है MSMEs के लिए कि वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग को अडॉप्ट करें। साथ ही साथ बैंकर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है that they provide more money to MSMEs through supply chain financing. With this, let's understand this new evolution that took place 7 years back. I'm so sorry. So we were talking about supply chain financing. तो आपने एक चीज समझी कि अभी तक any seller which was wanting to get finance in the business
in the form of these 4 types. बायर से जल्दी पैसा मांगो, बैंक के पास जाओ सिक्योर्ड लोन के लिए, या फिर अनसिक्योर्ड लोन के लिए, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. नाउ trades or supply chain financing opportunities are becoming fifth avenue in the country to give financing and more money in business. We'll understand trades in the subsequent slides. Now with this, RBI identified trades as an opportunity and issued licenses to couple of trades platforms. तो अब ये समझते हैं कि आरबीआई ने जब इस चीज को समझा तो उन्होंने एक वीडियो बनाया, एक मिनट का वीडियो. आप सब लोग प्लीज एंजॉय कीजिएगा. एंड अंकुश जी, आप मुझे बताइएगा कि जब ये वीडियो चलता है तो आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है ना? श्योर सर. तो अब मैं वीडियो चलाता हूं. प्लीज एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू आर एबल टू रिलेट टू इट. जी जी अंकुश जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर जी, आ रही है. ठीक है. एंड आप सभी लोग प्लीज अच्छे से एंजॉय कीजिए. छोटी सी वीडियो है, एक छोटा सा बहुत प्रोफाउंड मैसेज देने की कोशिश की गई है. लेट्स एंजॉय दिस. लास्ट ऑर्डर की पेमेंट अभी तक की. हेलो हेलो हेलो. नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है. ऐसे ही चलता रहा तो मैं बिजनेस से बाहर हो जाऊंगी. इतनी परेशान क्यों लग रही है? एक बड़ा ऑर्डर आया है और पिछले डिलीवरी का पैसा कुछ महीनों से अटका पड़ा है. तो जमाने के साथ चलना सीखना. ट्रेड्स में रजिस्टर कर. ट्रेड्स? ये क्या है? ट्रेड्स लघु उद्योगों को पेमेंट की परेशानी से बचाने के लिए बनाया गया है. माल सप्लाई करने के बाद खरीदार द्वारा स्वीकृत इनवॉइस को ट्रेड्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दो. बैंक इनवॉइस का पेमेंट आपको तुरंत दे सकता है, पर बेचने वाला और खरीदने वाला सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों ट्रेड्स पर रजिस्टर्ड होने चाहिए. सॉरी, कॉल कट गया था. एक बात बताइए, आप ट्रेड्स पे रजिस्टर्ड हो? हाँ, आप भी रजिस्टर कर लो. जी, और इनवॉइस भी करती हूँ अपलोड, और अब से पेमेंट की नहीं लूंगी लोड. आरबीआई कहता है, बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार. Sir, that's so wonderful and relatable. Can we just play once more? It's 1 minute audio video only. Yeah, why not? Very Why much not? relatable, sir. Yeah. Let's do this. How about all the audience there? One more time. Okay, I can see response on the chat box. So let's start again. Ankush ji, again on your special request. Oh, Shukriya, sir. I moved to the other slide. Let's play it again. Okay, go ahead. जी जी लास्ट ऑर्डर की पेमेंट अभी तक की. हेलो हेलो हेलो. नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है. ऐसे ही चलता रहा तो मैं बिजनेस से बाहर हो जाऊंगी. इतनी परेशान क्यों लग रही है? एक बड़ा ऑर्डर आया है और पिछले डिलीवरी का पैसा कुछ महीनों से अटका पड़ा है. तो जमाने के साथ चलना सीखना. ट्रेड्स में रजिस्टर कर. ट्रेड्स? ये क्या है? ट्रेड्स लघु उद्योगों को पेमेंट की परेशानी से बचाने के लिए बनाया गया है. माल सप्लाई करने के बाद खरीदार द्वारा स्वीकृत इनवॉइस को ट्रेड्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दो. बैंक इनवॉइस का पेमेंट आपको तुरंत दे सकता है, पर बेचने वाला और खरीदने वाला सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों ट्रेड्स पर रजिस्टर्ड होने चाहिए. सॉरी, कॉल कट गया था. एक बात बताइए, आप ट्रेड्स पे रजिस्टर्ड हो? हाँ, आप भी रजिस्टर कर लो. जी, और इनवॉइस भी करती हूँ अपलोड, और अब से पेमेंट की नहीं लूंगी लोड. आरबीआई कहता है, बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार. So thank you so much everyone for watching this. I'm sure आप इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं. सिचुएशन वो कि फोन कट गया, नेटवर्क नहीं लग रहा है, या कस्टमर से बात नहीं हो रही है, पुराना पेमेंट नहीं आ रहा है, and there is a solution available. So please go to the chat box and write relate if you are able to relate to this situation. आप में से कुछ लोग बॉम्बे, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी बैठे होंगे, कुछ लोग छोटे छोटे प्यारे प्यारे इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में भी होंगे, या फिर दरभंगा, छपरा, दार्जिलिंग जैसे जगहों से भी आते होंगे. सो आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में. प्लीज, आप लोगों ने वीडियो देखा है, गो एंड राइट रिलेट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल बी एबल टू अप्रिशिएट how this problem is a big problem for all the MSMEs, all the व्यापारीज एंड बाकी सभी उद्यमियों के लिए. चलिए आगे चलते हैं. अंकुश जी. जी सर.
तो अब क्योंकि हमने ये समझ लिया कि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग क्या है, कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, ना सिर्फ बैंकर्स के लिए बट सभी एमएसएमईज के लिए। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिससे आंख नहीं मूंदी जा सकती। यू जस्ट कांट गो ब्लाइंड फॉर दिस। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ट्रेड्स फंक्शंस। ट्रेड्स की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, एंड इट इज नॉट अलोन। So how it functions, how it works, let's understand that. So the first, any seller raise an invoice for any supply of goods and services on a buyer. काफी कॉमन सी ट्रांजैक्शन है जो हम दिन में जाने कितनी बार करते हैं, नथिंग न्यू। नाउ वेरी क्लियरली बायर अप्रूव्स द इनवॉइस। आजकल के संदर्भ में बात करें तो बायर अप्रूव्स द इनवॉइस either by doing a GRN in their ERP, या फिर वो फोन पे ईमेल पर कंफर्म करता है या स्कैन कॉपी पर एक थप्पा लगाकर कंफर्म करता है that it is approved. So after that, once a seller has a approved invoice, that invoice can be given to a bank through TREDS platform. I'm repeating. किसी भी सेलर या बायर को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर आना है, रजिस्टर करना है और इस इनवॉइस को ट्रेड्स पर आकर अपलोड करना है। तो इस अपलोड का मतलब होता है कि एक तरीके से सेलर हैज सोल्ड देयर रिसीवेबल्स, वो उधारी जो उसको कुछ समय बाद मिलनी है, दैट सेलर विल सेल देयर रिसीवेबल्स टू अ बैंक, एंड ऑन दैट बिहाफ बैंक विल मेक एन अर्ली पेमेंट टू द सेलर। तब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे बैंक ने तो मुझको पैसा दे दिया, आई एम गुड, बैंक को कैसे पैसा मिलेगा? सो इन दिस केस देयर इज थ्रू ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, और ये सारा का सारा काम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करता है। दैट ट्रेड्स प्लेटफॉर्म विल बी कनेक्टेड टू द बायर एंड बायर विल पे टू द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ऑन द ड्यू डेट, which means यहां पर तीन पार्टीज हैं, बायर, सेलर एंड फाइनेंसर थ्रू ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। हम ये तीनों पार्टीज ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है, और एक ट्रांजैक्शन जो बायर सेलर के बीच में हुआ है उसकी फाइनेंसिंग ट्रेड्स के थ्रू होगी। अब क्या एडवांटेज है, क्या कैसे इसको पार्टिसिपेट किया जा सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो पहली चीज, ट्रेड्स के एडवांटेजेस में से सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ट्रेड्स इज अ प्योर अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग। कोई भी कोलेटरल की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, कार, घोड़ा, गाड़ी कुछ देने की जरूरत नहीं है। इट्स अ प्योर अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग। ये ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है फॉर अ बायर एज वेल एज सेलर। इसका मतलब ये कि पैसा समय पर सेलर को मिल गया, बायर ने ड्यू डेट पर ही पेमेंट किया, लेकिन इस पूरे पीरियड में ना तो ये बायर की बुक्स में ना ही सेलर की बुक्स में लोन या बोरोइंग दिखेगा। सो इट्स अ ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि इन केस खुदा ना खास्ता अगर बायर ने पेमेंट बैंक को नहीं किया तो एमएसएमई से रिकवरी नहीं की जाएगी, एंड दैट्स हाउ आरबीआई हैज डिजाइन्ड दीज गाइडलाइंस। सो दैट्स द रीजन इट्स अ प्योर नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि दिस एंटायर ट्रेड्स फाइनेंसिंग इज कमिंग एट सच अ इकोनॉमिकल रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 3%। यहां पर एडवांटेज आपके बायर की बैलेंस शीट का लिया जाता है, दैट्स द रीजन द rate of interest is very lucrative. Trades के through all the buyers can comply with 43BH of the income tax, which means समय पर पेमेंट कीजिए, समय से पहले कीजिए पेमेंट to an MSME and also get compliance of section 43BH. Trades is very much a flexible scalable credit limit. यहां पर ऐसा नहीं है कि आपकी लिमिट डिफाइन कर दी जाएगी, नहीं साहब आपको 40 करोड़ से या फिर 4 करोड़ या 40 लाख से ऊपर की फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी। नो, आप जितना बिजनेस करेंगे उतना स्केल अप होता रहेगा आपका क्रेडिट। ट्रेड्स इज अ प्योर फिनटेक मॉडल, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया गया है, एंड इट्स अ डिजिटल जर्नी दैट यू विल ब्यूटिफुली एंजॉय स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनबोर्डिंग
to doing day-to-day transactions. So it's a digital journey and thoroughly crafted digitally. The other big advantage of Threads is आप अब अगर नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो आप एक बैंकर से बात करते हैं, 2 बैंकर के साथ ज्यादा से ज्यादा रिलेशन होते हैं, और थोड़े अगर बड़ा बिजनेस हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 बैंकर्स के साथ. लेकिन ट्रेड्स पर आकर आप 70-80 बैंकर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं विदाउट द बैंकर्स NOC to be taken. So that's another huge big advantage where you need not worry about the multiple relations that you are going to have with the financiers. And क्योंकि फाइनेंसर के साथ आपके रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू होंगी, उनकी बुक्स में आपके बिजनेस की एंट्री होना शुरू होगी, you can be sure of that all your financing strength will only increase. With this, Threads is bringing so many advantages. अब एक चीज आपको समझना जरूरी है, the entire Threads as a supply chain financing is RBI regulated. गाइडलाइंस RBI ने बनाए हैं, प्रोसेसेस भी RBI ने बनाए हैं. The entire digital platform which is created is also RBI audited, and that's how RBI on a regular basis regulate how the transactions are happening, how the financing to the needy MSMEs are happening. With these advantages, let's understand how Threads is unique. So first of all, Threads is a marketplace model जहां पर कोई भी सेल्स का ट्रांजैक्शन मल्टीपल बैंकर्स को दिखता है, एंड देन दे इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फाइनेंस इट. क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, ब्याज की दर सस्ती होती है. बिकॉज इट्स अ मार्केटप्लेस मॉडल, यू मे बी डीलिंग विद मल्टीपल बायर्स एंड ऑल्सो क्रिएटिंग न्यूअर रिलेशंस विद द बैंकर्स. स्टिल आपका रजिस्ट्रेशन एक बार होता है, आप एग्रीमेंट एक बार साइन करते हैं. दैट्स द रीजन इट इज वेरी ऑपरेशनली इजी. आपके एक एक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के पास होती है, और उस रिच इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बैंक आपके इनवॉइसेस की बिडिंग करता है और फाइनेंसिंग करता है. एंड क्योंकि जैसे मैंने पहली स्लाइड में, इससे पहले वाली स्लाइड में कहा कि ये नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग है, सो सेलर गंगा नहा चुका है, शांति से इनवॉइस की फाइनेंसिंग करने के बाद इत्मीनान से सो सकता है और अपने बिजनेस की बाकी चीजों पे ध्यान दे सकता है. एंड दीज आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड्स. विद दिस लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट इज एडवांटेजियस फॉर ईच ऑफ दीज 3 पार्टीज, सेलर, बायर एंड फाइनेंसर. सेलर के लिए, क्योंकि आप सभी व्यापारी गण हैं, उद्यमी हैं, आप जानते हैं कि पैसा उधारी में से निकालना कितना डिफिकल्ट है, तो ट्रेड्स के थ्रू आप पैसा जल्दी निकाल सकते हैं. It's easy financing. Minimum documentation is there. We only ask for one-time KYC. And जब पैसा टाइमली बिजनेस में आता है, मैं ट्रेड्स में आपको कुछ ऐसी भी स्टोरीज बताऊंगा जहां पर बिजनेसमैन से अरे 7 दिन में पेमेंट आ जाएगा ना, आई डोंट वांट टू यूज ट्रेड्स. ट्रस्ट मी, देयर आर अदर सच बिजनेस ओनर्स जो कहते हैं 3 दिन पहले भी पैसा आ रहा है ना, ले लो, भविष्य का पता नहीं है. And all of you will relate to that. भविष्य का पता नहीं है, better you get money early, even it is 3 days before, 7 days before, 15 days before. So let's encash your simple invoice into real money through Threads platform is what MSMEs are quickly adopting to. Financiers के लिए फायदा ये है कि उनको काफी सारा बिजनेस मिल जाता है. They get all their operational efficiencies are brought through Threads platform. And buyer के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, उनको लिक्विडिटी के लिए बैंकर्स के पास नहीं भागना. They can really take care of all their vendors in a beautiful way, and the money comes easy in their business. With these advantages, let's understand Threads में हमने क्या क्या और किया है. अच्छा, right now I will talk about M1 exchange, but उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 35 मिनट से
हम सब लोग सप्लाई चेन के इनोवेटिव वेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. वी अंडरस्टूड हाउ मच मनी इज नीडेड इन इंडिया बाय एमएसएमई सेक्टर. How much can be fulfilled through supply chain financing opportunities? Supply chain financing होता क्या है? What all is included? किसी भी ट्रेड में सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कैसे हेल्प कर रहा है? हम सभी व्यापारी लोगों को बिजनेस में पैसा लाने के लिए कहां से जद्दोजहद करनी पड़ती है, एंड दिस स्ट्रगल कंटिन्यूज टू ब्रिंग राइट वर्किंग कैपिटल इन बिजनेस. We also tried understanding what TReDS is, किस तरीके से ये इंडिया में मनी मोबिलाइज कर रहा है, and how it is bringing a lot of advantages to MSMEs, to the seller, to the buyer, and that's how India is progressing along with TReDS platform. Now I would like to give you a glimpse of M1 Exchange. ये इंडिया का पहला ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है जो 2017 से आप सभी एमएसएमईज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडिया की प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है. राइट नाउ वी हैव एमएसएमईज कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ट्रेड्स इज डूइंग, M1 TReDS is doing. आपको जानकर खुशी होगी कि मैं आज 19 जुलाई 2025 में बैठा हूं. अभी तक हम 2 लाख करोड़ के अमाउंट की फाइनेंसिंग कर चुके हैं एमएसएमईज की, और ये बहुत ही प्राउड फीलिंग है M1 एक्सचेंज के लिए और उन सभी एमएसएमईज के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. 2 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग अभी तक हो चुकी है, एंड this number is only gonna increase. That's the mission M1 Exchange has taken. अभी तक हम तकरीबन 60,000 MSMEs को ऑनबोर्ड कर चुके हैं. वो सारे MSMEs आके प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ले रहे हैं. 3,000 से ज्यादा लार्ज कॉर्पोरेशंस हमारे साथ हैं, और एंड यू नेम अ बैंक, वो सारी बैंक हमारे साथ काम कर रही है. With this, M1 Exchange has reached to every single corner of the country. आप उस शहर, कस्बा, जिला या पंचायत, उसका नाम लें, वहां से MSME आकर M1 Exchange को यूज कर रहा है. एंड आपको जानकर ये बहुत बड़ी खुशी होगी कि ये प्लेटफॉर्म रियल में माइक्रो एंड स्मॉल एंटिटीज के लिए है. 69% of MSMEs are coming. So just imagine 2/3 of the population of MSME sector is micro and small and using a TReDS platform, which means TReDS platform is not just for big entities. It is really for small and micro enterprises. So with this message, what we are bringing is a lot of financial inclusion of MSMEs at the platform. एक कंपैरेटिव समझ लेते हैं कि ट्रेड्स अगर हम दूसरे फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करें तो किधर रहता है. और ये भी बताऊंगा, आप नोटिस कीजिए कि लास्ट के कॉलम में ट्रेड्स लिखा है मैंने, और ये सारे कॉलम ग्रीन है, विच मींस इट्स अ प्योर विन विन, परफेक्ट प्रोडक्ट अंडर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग. आप चाहे उसको कैश डिस्काउंट से कंपेयर कीजिए, सीसीओडी से कंपेयर कीजिए, पैरामीटर मैंने पैमाने अलग अलग लिखे हैं कि सिक्योर्ड फाइनेंसिंग है, अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग है, इंटरेस्ट रेंज क्या रहती है, नंबर ऑफ बैंकर्स किस किस पोजीशन में किस किस प्रोडक्ट में होते हैं नहीं होते हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस शीट कितना है, एंड हाउ मच इज द रिस्क ऑफ बेड डेट्स, कितने टाइम के अंदर फाइनेंसिंग हो जाती है, and whether it is recourse or non-recourse, and some of these comparatives makes TReDS a super win for all the MSMEs. With this, let's एक एग्जांपल लेते हैं कि एक 10 लाख का इनवॉइस है जो किसी एक MSME सेलर ने अपने बायर को भेजा है. अब उस 10 लाख की फाइनेंसिंग के लिए अगर वो नॉर्मल बैंक में CCOD का एडवांटेज लेता है जो कि सिक्योर्ड फाइनेंसिंग है, या TReDS का एडवांटेज लेता है, तो क्या सिचुएशन रहेगी. क्रेडिट पीरियड यहां पे मैंने छोटा रखा है, सिर्फ 20 दिन का. और अगर इंटरेस्ट रेट, और प्लीज मेक श्योर व्हाट आई एम कंपेयरिंग इज अनसिक्योर्ड CCOD एंड अनसिक्योर्ड ट्रेड्स बिल डिस्काउंटिंग.
आप नोटिस करेंगे कि कॉस्टिंग, आप यहां पर देखिए कि कॉस्टिंग आधी है बिल्कुल। 7,500 में फाइनेंसिंग कॉस्ट के बेसिस पे आप 10 लाख के इनवॉइस को फाइनेंस करते हैं, ट्रेड्स पर वही फाइनेंसिंग आधे पैसे में हो रही है, 3,800, लेस देन 4,000 रुपीज। So imagine that's how so beautifully economical Threads platform is. With this, let's understand इस एडवांटेज को लिया कैसे जाए। Threads पे ज्वाइन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, 100% डिजिटल ऑनबोर्डिंग है। आप M1 एक्सचेंज की वेबसाइट पे आइए, तो वहां पर सेलर रजिस्ट्रेशन का एक टैब होता है। आपको सिर्फ 4 या 5 इंफॉर्मेशन देनी है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज पिक्ड थ्रू डिजीलॉकर। यहां तक कि पेनी ड्रॉप के थ्रू जिस बैंक में आपको पैसा चाहिए उसका भी वैलिडेशन हो जाता है। ऑल योर पैन, जीएसटी, उद्यम, ऑल दीज डिटेल्स आर डिजिटली वैलिडेटेड एंड योर रजिस्ट्रेशन हैपेंस क्विकली। यहां तक कि पूरा एग्रीमेंट भी जो ट्रेड्स का है वो भी डिजिटली साइन होता है, या तो आधार बेस्ड ओटीपी के थ्रू या फिर आपके डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। एंड this digital onboarding journey makes MSMEs come and join Threads program faster. क्योंकि इस पूरी रजिस्ट्रेशन की जर्नी में ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। इसके अलावा प्लीज नोट कीजिएगा, M1 एक्सचेंज Threads प्लेटफॉर्म RBI रेगुलेटेड है, so we have to do KYC also. We do that. Once our registration is complete, we also take care of giving you training of the portal. We also inform you how to do invoice upload, and we have 24/7 help desk available to give you the right support. With this, let's move forward. मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे बैंक्स जुड़े हुए हैं M1 एक्सचेंज के साथ। ये कुछ बैंक्स के नाम है, सारी लिस्ट यहां नहीं आ सकती थी, तो मैंने कुछ प्रोमिनेंट बैंक्स के नाम यहां पर लिखे हैं। और इसके साथ आप समझ पाएंगे कि मोस्ट ऑफ दीज बैंक्स आर व्हाट यू गाइस आर ऑलरेडी वर्किंग। सो इमेजिन आपका बैंकर, चाहे वो SBI है, कैनरा बैंक है या फिर HDFC बैंक है, वो भी ट्रेड्स पर आकर आपके बिजनेस की फाइनेंसिंग करेंगे। So don't stop there. Come, participate and make your business full of money. बहुत सारे PSU एंटरप्राइजेज, गवर्नमेंट के सेक्टर की कंपनीज हमारे साथ आकर अपने वेंडर्स के बिल्स की फाइनेंसिंग कर रहे हैं। कुछ नाम यहाँ पे दर्ज हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स आर डूइंग वर्क। दे आर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल, ऑटो इंसुलरी, फार्मा, उन सब सेक्टर से आते हैं। कंस्ट्रक्शन, FMCG, these are some of the names I have given. I'm sure the list is very, very big. The entire Tata group is working and people are really very happy using Threads platform. Auto sector, you name that auto company, whether they are into two-wheeler segment or passenger vehicle segment or commercial segment, they are coming. EV sector is also very prominently using Threads platform for vendor payments. With this, so far we have spoken about Threads, its advantages, what kind of work Threads has done in the last 7-8 years. We also understood Threads is a prominent player in the supply chain financing domain in the country. Now with this, मैं अगला 1 मिनट लगाना चाहूंगा on something very, very new happening in the supply chain financing. So अंकुश जी, 1-2 मिनट का समय लेंगे अगला, और इसकी बात करेंगे कि ट्रेड्स में और सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है। और ये अगली कुछ जी। If you don't mind, more than 50 questions we have from 500 around participant. So since we have a little less time, so can I just summarize in such a way that I'll cover the question also? So please correct my understanding, and in that way, most of the question will be answered. Though in your presentation, most of the question has been answered. After that, we can take it. Yeah. मुझे सिर्फ अगले 2 मिनट दीजिए, and then we will complete this presentation.
एंड उसके बाद जी सर। सभी लोगों के, और प्लीज आप सब लोग, आपके सवाल बहुत जरूरी हैं, उन सारे सवालों का जवाब देंगे। हम सिर्फ 5:30 बजे तक नहीं है, वी आर हेयर टिल ईच सिंगल क्वेश्चन इज आंसर्ड. So Thank you for saying that, sir. be with Then us. no worries. No Be worries with then. us. Yeah. So what we are trying to say, trades today is now becoming a 360-degree supply chain financing opportunity. अब ये कैसे बन रहा है इसको समझते हैं. आप सबको पता है कि कोई भी एमएसएमई अगर माल किसी भी कॉर्पोरेट बायर या पीएसयू बायर को बेच रहा है, then trades is applicable. Now the bonanza is if the same MSME is buying goods from another MSME. So far in the last 7 years, that was not covered. So this piece was not covered. Now under trades, under supply chain financing opportunity, purchases of MSMEs. I'm repeating, purchases, procurements of MSMEs are also included. So the government, the regulators have given a go ahead. It is already there, happening for the last 1 year. So if you don't know, please go and talk about it. Don't delay. Get your business assessed and get this financing happening in your books. And mind it, all my friends, it is unsecured. So take the full advantage. अब ये होता कैसे है? 1 साल पहले आरबीआई ने M1 एक्सचेंज को एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया टू टेक केयर ऑफ द परचेज ऑफ एमएसएमईज. वो दिया बेसिस द डिजिटल फुटप्रिंट एंड द स्ट्रेंथ M1 एक्सचेंज हैज. जिसके लिए व्हाट वी डू इज वी do a lot of data churning of MSMEs to identify if they are doing the right business, they are eligible, they have ability to repay, and they have intent to repay. And all these intent and ability comes in through how you doing the right compliances in business, all your banking transactions are right or not. So that's how the overall credit worthiness is arrived at, and you can take the advantage of financing your procurement also. With this, now I would like to declare that trades today is a complete 360-degree supply chain financing opportunities for MSMEs. Because trades in the last 7-8 years has done wonders. Trades is the right India का progress partner. आप सबको पता है कि इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, एंड वी आर वेरी प्राउडली पार्टिसिपेटिंग एज ट्रेड्स प्लेटफॉर्म फाइनेंसिंग एमएसएमईज इन बिल्डिंग सच ह्यूज projects of big ambition, project of big opportunities. So and you can understand this, how Chenab railway bridge is gonna change the dynamics of J&K. How metro connectivity is bringing people together and bringing progress. So some of these are small to big contribution made by M1 Trades platform, and India, it is becoming India ka progress partner. With this, big round of thanks to all of you. I'm so happy that eMSME could bring all of you together here, and we are digitally connected. Technology has certainly brought in immense amount of opportunities for individuals, for businesses, and for the nation. With this, I would like to thank Ankush for organizing this, and let's quickly take up questions. Once again, big round of thanks from my side, from M1 Exchange family, and that's how we are bringing immense amount of opportunity and financing to MSMEs. Thank you so much. Let's get on to the questions now. So big round of applause to Vishal Kumar sir.
You have really beautifully, wonderfully explained all the concepts. So I think most of the question has been answered also, but I'll read all those questions. And Sure. Professor, sir, it will be a little question answer for fire round kind of stuff for you. So the understanding can be crystal clear to every one of us. So, Sure. sir, any you just need to say yes or no, a little narrative. Any MSME can become part of the M1 exchange or any trades platform while doing the trades will do KYC and due diligence once only for them, right? That's right. That's right. Okay. The Now- answer is yes. Yeah. So if I am a supplier or seller of goods or services and I have hundreds of buyer. So once I am registered, then whosoever buyer is registered on the trades platform, MSME will help us to get their concurrence in accepting the invoice and will do bill discounting. That's right. So that support is also offered. And now it is going to have the 360-degree platform. Yeah. Is there any better mechanism to get cheaper finance than trades? Since you mentioned the comparison also that everyone else is doing financing from 9% to 18% around, but trades is able to do in the 7%, so it become a cheapest. So is it true, or is there any other better financing available? Formally it is the cheapest, and let me also tell you, इसके अलावा एक ही फाइनेंसिंग है जो इससे सस्ती है, वो ये है कि आप मार पिटाई करके कहीं से इधर से चोरी करो, वो हम करना नहीं चाहिए. So we are only वो नहीं talking करना about organized way of getting funds. Yes. Not even Trust the me, private lender. Ankush ji, why it is the cheapest? We have to understand it, and understand it from the context of a MSME. Mhm. किसी भी MSME के लिए किसी भी बैंकर के दरवाजे पर खटखटाकर अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग मांगना आज की डेट में बहुत डिफिकल्ट है. That's one. Mhm. Second, in case the banker say yes, they open their demand with saying 15%, 18%, 20%, and there are enough financial institutions which are milking through this way. On trades, the entire financing happens on the balance sheet strength of a buyer. And most of these buyers are prominent players, well-rated organizations. As a result, buyer की financing capability और seller की financing capability में काफी फर्क है. Very true. And as a result, एक फाइनेंसर जो डायरेक्टली बैंकर से जाके पैसा उठाएगा और वो ट्रेड्स के थ्रू पैसा उठाएगा, द कॉस्ट इज ऑलमोस्ट हाफ. And sir, so I have hundreds of buyer and they are doing banking with different banks and I am registered with trades platform. So I can do, leverage on the multilateral concepts. So one That's to right. many, I can benefit while registered only with one of the trade platform. That's right. That's right. You only need to register once, and suddenly bank relationship opens up for 60-70 with 60-70 banks. So sir, it really sounds too good to be true. It's 100% digital. It is 360, transparent. I don't need to give any collateral. I can transact with multiple bank. I can get the cheapest way of funding, fastest way of funding. So is there any cons also? There's so many pros. Everything looks so good through the trades Sure. platform. So there must be Sure. some hidden things. So, interestingly, there is nothing hidden, because if this would have been the case, we would not have been doing daily 500 crore worth of financing daily. सिर्फ M1 एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ही 500 करोड़ की फाइनेंसिंग कर रहा है डेली. जहां तक सवाल है कॉन्स, मुझे ऐसा लगता है द काइंड ऑफ इकोसिस्टम गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स आर ब्रिंगिंग, they are really thinking through very clearly as to how to help MSMEs in the current scenario. So basically all trades RBI government is working in the true sense and intent to empower MSME. So their working capital cycle can be better. So That's now I have right. few state question also from the audience, though Ji. few of them I have covered. Sarvesh Patil asked, if I discount invoice on trades, do I get to choose between multiple financer for the best rate, or it is assigned automatically?
पाटिल जी एकदम बेहतरीन सवाल पूछा है आपने। सो पाटिल जी आपको बताने का ये, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है, वेबिनार में सारी चीजें मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाता, समय का अभाव था। सो पाटिल जी बहुत बेहतरीन सवाल है। यू गेट an opportunity to choose the bank, the rate of your choice at the platform. So, one anonymous person has asked that कहाँ से मिलेगा उद्यम सर्टिफिकेट? So आप मेरे बेनाम दोस्त, आपके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की वेबसाइट है udyamregistration.gov.in। आप वहां पर जाएं। तकरीबन 7 से 8 इंफॉर्मेशन डेटा पॉइंट्स आपको देने हैं। आफ्टर दैट the udyam will be issued to you, if I'm not wrong, in 24 to 48 hours, that too digitally. एंड मैं भी बोलना चाहूंगा सारे 500 व्यापारी जो रजिस्टर्ड हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, आपके लिए हम सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराएंगे। इट इज 7 मिनट सिंपल प्रोसेस टू जनरेट योर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। परफेक्ट। तो सिर्फ अंकुश जी हैं, तो फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। जी सर, सिद्धार्थियन इज आस्किंग if I have a large corporate buyer who isn't registered on the trades, can I still get discount on my invoice, or do I have to convince them to be